Hello students, this is class 11 physics unit 1, that is chapter 2 units and measurement. So today we are doing NCERT exercise. Okay, so we are doing additional exercise. This is we are on page number 37. तो this is question number 2.24 जो हमारा एक पीछे का क्वेश्चन रहता था, पहले हम उसको करेंगे बेटा. ठीक है, तो what the question is saying? Question is saying to us, when the planet Jupiter is at a distance of 824.7 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ. ठीक है, एक प्लेनेट है जुपिटर, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट प्लेनेट एंड द अर्थ ऑल्सो यू हैव टू नो. सो इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द जुपिटर प्लेनेट एंड द अर्थ इज 82.4.7 मिलियन किलोमीटर. ठीक है, इसका एंगुलर डायमीटर इज 35.72. क्लियर. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? डायमीटर ऑफ जुपिटर. सो वी हैव टू कैलकुलेट डायमीटर ऑफ जुपिटर. सो स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी, suppose this is Jupiter, suppose this is Jupiter and this is Earth. So we have to take these 2 points so that we can find out the angular diameter. So this is the angular diameter between the Earth and the Jupiter, 35.72, and this is the R, that's the distance between the Jupiter and the Earth, 82.7 million kilometers. So first of all we have to change that million into kilometers, so we have to multiply with 10 की power 6. So R now become 82.4.7 into 10 की power 6 kilometer. So theta, that is the angular diameter, clear, that is 35.72. जब इसको हम रेडियन में चेंज करेंगे तो we have to multiply it with pi by 180 and divided by 3600. ठीक है. So now we have to find out L. So what is the formula of L? So we know that for angular radian, that is theta is equal to L by R and L is equal to R into theta. So put the value of R and theta at here. ठीक है, from here put that value and that value in that equation. So we have to put all these values, that 82.4.7 into 10 की power 6 into 35.72 into, that is the pi, 3600 into 180. So after calculating, we can use calculator for this thing. Okay, so this is the answer. This is the distance between the angular displacement between the Jupiter and the Earth. Okay, you can see it again. Okay, so now we are doing the next question. What is the next question is saying to us? Next question is saying to us that is additional exercise 2.25. A man walking briskly in rain with speed v must slant his umbrella forward making an angle theta. ठीक है, एक आदमी है, बारिश में जा रहा है. ठीक है, सपोज को दिस इज ए मैन और ये उसके ऊपर एक अम्ब्रेला उसने लिया हुआ है. तो वो कह रहा है जो अम्ब्रेला है ना उसके साथ थीटा एंगल बना रहा है. या जैसे हम आपको पता ही, जैसे हम अम्ब्रेला को पकड़ते हैं. ठीक है, और जो उसने रिलेशन दिया, स्टूडेंट ने जो रिलेशन ड्राई करा, वो करा tan थीटा इज इक्वल टू v. और ये कब करेक्ट दे रहा है लिमिटेशन? जब हम ले रहे हैं v टेंड्स टू 0 and थीटा टेंड्स टू 0. क्लियर. सो वी आर अज्यूमिंग हेयर दैट नो स्ट्रॉन्ग विंड एंड रेन फॉल्स वर्टिकली, कि कोई बारिश नहीं हो रही है, जो मतलब कोई तेज़ हवा नहीं चल रही है, और जो बारिश है ना वो स्ट्रेट हो रही है, ऐसे सीधी. तो हमें चेक करना है कि क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है, और है तो क्यों है, या नहीं है तो क्यों नहीं है. ओके बेटा, चलो इसको हम करते हैं. तो देखो बेटा, दिस इज 2.25. तो इसने क्या रिलेशन दिया? और tan थीटा इज इक्वल टू v. जब v टेंड्स टू 0 और थीटा टेंड्स टू 0, तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे बेटा? हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे होमोजेनिटी प्रिंसिपल. क्या अप्लाई करेंगे? होमोजेनिटी प्रिंसिपल. होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? राइट हैंड साइड, dimension of right hand side is equal to dimension of left hand side. So what is the right hand side? That is tan theta, so it is dimensionless. So m0, l0, t0. Now we have to take left hand side. Left hand side there is velocity. The dimension of velocity is m0, l1, t minus 1. So dimensionally we can say that left hand side and right hand side are not equal to each other. ठीक है, सो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड दोनों इक्वल नहीं है. सो फॉर्मूला इज नॉट करेक्ट. इस फॉर्मूले को हम ड्राइव करेंगे यूनिट 3 जो हमारी आगे आएगी उसके अंदर. सो दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई RG. ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा. ठीक है बेटा, इसको हम ड्राइव करेंगे यूनिट 3 में. सो आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन इट हियर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2.26. व्हाट दैट क्वेश्चन इज सेइंग? इट इज़ क्लेम दैट 2 CGM clocks if allowed to run for 100 years. मतलब हमारे पास 2 CGM clocks हैं. सपोज दिस इज फर्स्ट क्लॉक एंड दिस इज सेकंड क्लॉक. ठीक है, उनको दोनों को 100 ईयर के लिए मतलब चला रहे हैं. और
जब हमने उनको चेक किया तो हमें उनके बीच में डिफरेंस मिला 0.02 सेकेंड का, ठीक है। व्हाट इज इम्प्लाई फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड सेल CGM क्लॉक इन मेजरिंग ए टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। हमें क्या करना है उनके बीच में, मतलब एक तरीके से एक्यूरेसी चेक करनी है स्टैंडर्ड CGM क्लॉक की, अगर टाइम इंटरवल 1 सेकेंड हो तो, ठीक है बेटा। अब इसने 100 ईयर के लिए कितना एरर दे रखा है, 100 ईयर के लिए इसने एरर दिया हुआ 0.02 सेकेंड का, तो हमें 1 सेकेंड के लिए एरर निकालना है। समझ में आ गया क्या निकालना है? चलो अब निकालते हैं। तो एरर ऑफ 100 ईयर इज 0.02 सेकेंड, एरर इन 1 सेकेंड वी हैव टू फाइंड आउट। सो बेटा 100 ईयर के लिए निकालोगे आप, तो 100 ईयर को हमने डेज में कन्वर्ट करा, 365 इंटू 1/4, 24 फॉर डे एंड दैट इज़ 4 आवर एंड मिनट्स, ठीक है। सो हमने क्या किया, इसको हमने 2 × 10⁻² लिख सकते हैं बेटा। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यू कैन दिस इज यू कैन से इट 425, फिर इसको जब हमने मल्टीप्लाई करा तो दैट इज़ दिस 1461 इंटू 24 इंटू 36 इंटू 10⁴, ठीक है। जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास आया 7.9 10⁻13 सेकेंड। और जब हम इसको 7.9 को अप्रोक्सीमेट हम क्या लिख सकते हैं 8, दैट इज 8 इंटू 10⁻13 सेकेंड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग टू अस? Next question is saying to us, estimate the average mass density of sodium atom assuming its size to be about 2.5 एंगस्ट्रॉन। मतलब कि उसका साइज 2.5 एंगस्ट्रॉन है और इसकी जो अवोगाड्रो नंबर और एटॉमिक मास हमें पता ही होता है। अवोगाड्रो नंबर क्या होता है 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। और मास आपको पता है इसका 23 होता है, ठीक है। वैसे तो 22.5 होता है बट 23 अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं, ठीक है। और उसका और क्या पूछ रहा है बेटा, कंपेयर इट विद द डेंसिटी ऑफ सोडियम इन इट्स क्रिस्टलाइन फेज। हमें इसकी डेंसिटी को कंपेयर करना है, किसके साथ कंपेयर करना है बेटा 970 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मतलब ये हमें एक डेंसिटी दी हुई है, इसके साथ हमें इसको कंपेयर करना है, क्या ये दोनों डेंसिटी सेम ऑर्डर की आएंगी, इफ सो अगर हाँ तो क्यों, क्लियर। तो हमें निकाल, पहले हम सोडियम एटम की डेंसिटी निकाल लेंगे। तो देखो बेटा सोडियम एटम का साइज़ कितना दिया हुआ 2.5 एंगस्ट्रॉन। 1 एंगस्ट्रॉन को हम इसमें चेंज करेंगे मीटर में, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻10 10 मीटर। बिकॉज आपको पता है जो 1 एंगस्ट्रॉन है वो किसके इक्वल होता है 10⁻10 मीटर के इक्वल होता है, ठीक है। इस तरीके से मैंने चेंज कर दिया। मास कितना दे रखा है 23 AMU, किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो बिकॉज स्फेरिकल फॉर्म ही मानते हैं हम एटम्स को, जो भी शेप मानते हैं, तो एटॉमिक वॉल्यूम क्या हो जाएगी उसकी 4/3 πr³ इंटू में एन इज अवोगाड्रो नंबर, ठीक है। 4/3 पाई 3.14 r दैट इज 2.5 इंटू 10⁻10। सो वी हैव टू पुट इट हेयर दैट इज क्यूब एंड 6.03 इंटू 10⁻23 दिस इज Avogadro number. After solving all these equation, we have to get 4.93 into 10⁻6 meter cube. So this is the volume. Now we want to find out density. So density is what? Rho. Rho is the density, and this is the formula of density. So m is 23 into 10⁻3. This is the volume. After solving, we have to get 4.67 into 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आगे क्वेश्चन भी आएगा बेटा जहाँ पे हम इसको इसके साथ इसको सोल्व करेंगे, अगर इसका हम यूज भी करेंगे। सो दिस इज द डेंसिटी ऑफ द सोडियम एटम, ठीक है बेटा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है द यूनिट ऑफ लेंथ कन्वेंट ऑन ए न्यूक्लियर स्केल इज फर्मी। मतलब कि न्यूक्लियर स्केल के लिए हम है ना इस यूनिट को कंसिडर करते हैं फर्मी को, ठीक है। और जो न्यूक्लियर साइज है वो इस फॉर्मूले को फॉलो करता है, R इज इक्वल टू R0 12th क्लास में इसको काफ़ी ब्रीफली अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है बेटा। सो वेयर आर द रेडियस ऑफ न्यूक्लियर, ठीक है। ए क्या है बेटा एटॉमिक मास है, इसका मास नंबर है सॉरी। R0 क्या है बेटा कांस्टेंट है जो 1.2 फर्मी के अप्रोक्सीमेट होता है। हमें क्या शो करना है, हमें ये शो करना है द रूल इम्प्लाई दैट न्यूक्लियर मास डेंसिटी इज नियरली कांस्टेंट फॉर डिफरेंट न्यूक्लियर। तो मतलब हमें निकालना है न्यूक्लियर मास डेंसिटी, ठीक है बेटा। और उसको कंपेयर करना है किसके साथ सोडियम एटम की डेंसिटी के साथ। अब ये जो हमने सोडियम एटम की डेंसिटी निकाली है ना बेटा उसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना, जो यहाँ से स्टैंडर्ड न्यूक्लियस निकाल लेंगे, ठीक है बेटा। यहाँ से स्टैंडर्ड डेंसिटी निकाल लेंगे किसी भी न्यूक्लियस के लिए, उसको किससे कंपेयर करेंगे सोडियम एटम की उसके साथ कंपेयर करेंगे। ओके चलो अब इसको हम सोल्व करते हैं। देखो बेटा हमने मान लिया कि एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियन का मतलब क्या होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन,
ठीक है। कोई भी एटम होता है बेटा, उसका यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं ना बेटा, उन्हीं को न्यूक्लियन बोलते हैं। तो न्यूक्लियस का मास न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होगा, तो न्यूक्लियन का हमने ये मान लिया ए एटॉमिक मास है, उसका एटॉमिक नंबर है। एम इज द मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, मास हो गया तो एम इंटू ए। अब रेडियस कितने दे रखी, आर, और आर किसके कुल दे रखा बेटा, आर नॉट ए की पावर 1/3। अब रो क्या होता है बेटा, न्यूक्लियर डेंसिटी निकाल लेंगे ना, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास बाय वॉल्यूम, क्योंकि स्पेयर है, स्पाइकल की वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब। 3 को ऊपर लेके जाएंगे 3m/4 पाई आर क्यूब, ठीक है बेटा। तो 3m की जगह हम क्या पुट कर देंगे, ये दिस वैल्यू वी हैव टू पुट 3m में 4 पाई आर नोट क्यूब, ठीक है। अब ये कह रहा है अगर m और r नोट क्या आपके कांस्टेंट है, ठीक है, अगर कांस्टेंट है तो आपका m क्या हो जाएगा 1.66 इंटू 10 की पावर -27, ठीक है। अब सोडियम के लिए हम निकाल लेंगे, तो सोडियम के लिए वही सेम फॉर्मूला रहेगा m/v 3m, क्योंकि ऊपर जाके बेटा ये हो जाएगा ना इसका। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 1.66 इंटू 10 की हमने निकाला था बेटा, तो हम दोबारा इसको बार बार नहीं निकालेंगे, ठीक है। 4 इंटू 3.14 पाई की जगह और ये आर की जगह पुट कर दिया। पूरे को सोल्व करेंगे तो ये आपकी डेंसिटी आ गई सोडियम की, ठीक है। जो हमने पहले निकाली थी वो कितनी आई थी 4.67 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। देखो बेटा ये हमने इस क्वेश्चन में निकाली हुई है, निकाली थी ना, तो हम इसको दोबारा नहीं निकालेंगे। अब हमें हमारे पास जो आई है ना, उसको हम इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, कंपेयर करने के लिए हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो अब हम दोनों को, रो को और रो डैश को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो रो बाय रो डैश, तो ये रो की वैल्यू है और ये रो डैश की वैल्यू है। ये 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 17, तो कितना हो जाएगा 2.29 अपॉन 4.67 इंटू 10 की पावर 17 - 3, ठीक है। 17 - 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 की पावर 14, क्लियर। और इनको आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 4.9 इंटू 10 की पावर 14। एक बार आप इनको चेक जरूर कर लीजिएगा कि क्या इनकी डिवाइड होने के बाद यही आ रहा है, ठीक है। एक बार लेट मी चेक, मैं इसको चेक कर देती हूँ एक बार कि इसका सोल्व होने के बाद यही आ रहा है या कुछ और रहा है। बट विच क्वेश्चन इज दिस, इज क्वेश्चन नंबर 228, ठीक है। तो बेटा इसको मतलब इसने क्या किया है, ये जो आया है इसके बाद 2.29, तो इसका ये कैंसिल हो गया, तो ये 229,467। फिर हमने क्या करा 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया, 10 की पावर 14, ठीक है बेटा। तो अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 229,467 10 की पावर 13, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे ना, फिर ये आ जाएगा 4.9 इंटू 10 की पावर 13, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, दिस इज द आंसर, क्लियर। चलो अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 2.29, व्हाट दिस क्वेश्चन इज सेइंग टू अस 2.9 ए लेजर इज ए सोर्स ऑफ वेरी इंटेंस लेजर इज ए सोर्स ऑफ वेरी इंटेंस मोनोक्रोमेटिक एंड यूनिडायरेक्शनल बीम ऑफ लाइट। आपको पता है ये लेजर एक मतलब यूनिडायरेक्शनल लाइन होती है, वो क्या होती है मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, बट एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करती है, ठीक है। ये कह रहा है इस प्रॉपर्टी ऑफ ए लेजर लाइट, इस लेजर लाइट की इस प्रॉपर्टी हो कि इंटेंस है, मोनोक्रोमेटिक है, यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है। तो हाँ ये कह रहा है क्यों ना हम इसके इस चीज़ को मतलब इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं और लेजर लाइट कैन बी एक्सप्लोर्टेड टू मेजर लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। ज़्यादा लंबी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम इसका यूज़ कर लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ मून एंड फ्रॉम द अर्थ की मून से डिस्टेंस अगर हम लेजर लाइट की हेल्प से मेजर करने की कोशिश करें, सो लेजर लाइट बीम एट द मून टेक्स 2 पॉइंट, तो लेजर लाइट मून पे जाने में 2.56 सेकेंड लेती है, ठीक है। अगर हम अर्थ के सरफेस से मून के सरफेस पे लेजर लाइट को भेजें तो कितना टाइम लेती है बेटा 2.56 सेकेंड लेती है। उसके बाद क्या कह रहा है रिटर्न आफ्टर रिफ्लेक्शन एट द मून सरफेस, और वहाँ पे मून के सरफेस पे टकराने के बाद वापस आ जाती है। सो हमें बताना हाउ मच इज़ द रेडियस ऑफ लूनर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। हमें क्या निकालना है लूनर उसका रेडियस निकालना है, ठीक है बेटा। सपोज दिस इज अर्थ एंड दिस इज मून, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून। बिकॉज अब देखो बेटा इसमें हमें क्या करना पड़ेगा 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज एक बार उसका जाने का और एक बार उसका आने का, तो डबल टाइम हो गया ना। तो हम उस टाइम को क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास सिंगल टाइम रह जाएगा। तो टाइम 2.5 सेकेंड है। वेलोसिटी क्योंकि जाएगा तो इतनी स्पीड से ही जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
ठीक है। सो हमने यहाँ पे x क्या कंसिडर कर लिया, x इज द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून। सो वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ x इज इक्वल टू c/t/2, जैसे हम सोनार में नहीं करते थे वैसे वाला कंसेप्ट है बेटा। तो टाइम को हम यहाँ पे क्या लेंगे, t/2 की फॉर्म में लेंगे। तो 3 × 10⁸ इंटू टाइम 2.56 डिवाइडेड बाई 2, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1.28 आ जाएगा। सो वी हैव टू गेट 3.84 × 10⁸ मीटर। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, सिंपल सा था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2.30, ये सोनार पे बेस्ड है बेटा। ये आपका भी 9th क्लास में आया था। ये सोनार क्या होता है, साउंड नेविगेशन रेंजिंग, मतलब जो समुंदर होता है, समुद्र के अंदर जब सबमरीन्स वगैरह चलती हैं बेटा, तो उनके अंदर कोई रॉक्स है या कोई भी ऑब्स्टेकल है, उसका पता करने के लिए इसका अल्ट्रासोनिक वेव्स का इसमें यूज़ करते हैं। तो कह रहे हैं सबमरीन इक्विप्ड विद ए सोनार, the time delay between generation of a probe wave and the reception of its echo after reflection from an enemy submarine is found to be 77.0। कह रहा है कि जो सोनार थी, मतलब उसने जो कोई भी एक प्रोब उसने अपनी वेव भेजी और जब वापस आया तो जो टाइम लिया उसने, इतना टाइम लिया, जाने और आने का टाइम है उसका ये। अब हमें बतानी है डिस्टेंस ऑफ एनिमी सबमरीन, मतलब जो दुश्मन वाली सबमरीन है, जो दुश्मन है हमारी, उस सबमरीन, हमें ये पता करना है कि वो जो सबमरीन है वो हमसे कितनी दूर है। क्लियर। और साउंड की जो स्पीड है वाटर में वो है 450 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बेटा इसको आप ऐसे समझो, देखो जैसे कि ये हमारी सबमरीन है और सपोज करो यहाँ पे वो दूसरे वाली है। तो जब यहाँ से हमने लेबोरेटरीज भेजी हैं, तो इसने जाने में और आने में जो टाइम लिया है ना वो है 77.0 सेकेंड। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ के डिस्टेंस निकालने। तो बेटा जाने की डिस्टेंस हो रहा है तो डबल हो जाएगी ना, तो हमें तो सिंगल डिस्टेंस निकालने, तो 2 से डिवाइड करेंगे। वेलोसिटी कितनी दे रखी है बेटा, 1450 मीटर पर सेकेंड। तो x क्या हो जाएगा, v/t/2। क्लियर। तो 450 इंटू 77.0/2, इसको इससे डिवाइड करेंगे बेटा, कितना आ जाएगा 725। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 58825 मीटर। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट सबमरीन एंड सेकेंड सबमरीन। ठीक है, ये दोनों के बीच का क्या है बेटा, डिस्टेंस है। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए न्यूमेरिकल बेस्ड। ओके, उसके बाद आपका क्वेश्चन है, इट इज़ ए वेल नोन फैक्ट दैट ड्यूरिंग ए टोटल सोलर इक्लिप्स के टाइम पे 2.31, सॉरी बेटा 32, हमने पहले 31 करना है। द फारथेस्ट ऑब्जेक्ट इन आवर यूनिवर्स डिस्कवर्ड बाय मॉडर्न एस्ट्रोनॉमर। ठीक है, जो आज की मॉडर्न एस्ट्रोनॉमर हैं उन्होंने जो एक मतलब कह रहा है कि सबसे दूर जो एक यूनिवर्स में एक ऑब्जेक्ट को डिस्कवर किया है। ठीक है, दैट लाइट एमिटेड बाय देम टेक्स बिलियन ऑफ ईयर टू रीच द अर्थ, और उसकी लाइट हमारे अर्थ तक पहुंचने में बिलियन ईयर्स लेती है। ठीक है, दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कुसार, इस ऑब्जेक्ट को हम कुसार कहते हैं। ठीक है, काफ़ी इसकी फीचर्स भी काफ़ी पजलिंग हैं, इसको प्रॉपरली अभी देखा नहीं गया अच्छे से। और ये माना गया है कि जो कुसार से लाइट आती है हमारी अर्थ पे वो इतने साल लेती है, 3.0 बिलियन ईयर। तो हमें बताना है उसकी डिस्टेंस कि वो हमारी अर्थ से कितना दूर है। ठीक है, तो हमें एक्स निकालना है। सो बेटा लिसन, ये सपोज करो ये वो स्टार है। ठीक है, और वो यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम ले रहा है, 3.0 बिलियन ईयर। ठीक है, तो बिलियन को हम ईयर में चेंज करने के पावर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 × 10 की पावर 9, और ईयर को चेंज करेंगे 365, ये ईयर के लिए हो जाएगा, फिर डे के लिए और ये सेकंड के लिए, तो कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ से यहाँ लाइट आएगी तो लाइट की स्पीड क्या होती है बेटा, 3 × 10 की पावर 8। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो दोनों को हम क्या कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 × 10 की पावर 5 इंटू 3 × 10 की पावर 9, 24 इंटू 3600। आफ्टर सॉल्यूशन ऑफ दिस थिंग, ठीक है, तो यहाँ से जब आप सोल्व करो तो 10 की पावर 5 और 9 14, 14 और 2 16। ठीक है, सोल्व करने के बाद हमें मिलेगा 2.84 इंटू 10 की पावर 22 किलोमीटर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2.32। ये क्वेश्चन क्या कहता है, इट इज़ ए वेल नोन फैक्ट दैट ड्यूरिंग ए सोलर इक्लिप्स द डिस्क ऑफ द मून ऑलमोस्ट कम्प्लीटली कवर द डिस्क ऑफ द सन। सोलर इक्लिप्स, टोटल सोलर इक्लिप्स में क्या कहते हैं बेटा, कि जो मून की छाया है वो अर्थ को कम्प्लीटली ढक लेती है। सोलर इक्लिप्स में क्या होता है, मून आ जाता है बेटा सन और अर्थ के बीच में। तो फ्रॉम दिस फैक्ट एंड फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन यू कैन गैदर, जो आपने एग्जाम्पल 2.3 और 2.4 से जो भी इन्फॉर्मेशन गैदर करी है उसका यूज करते हुए आप बताओ अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ द मून। हमें डायमीटर बताना है मून का, क्या बताना है, डायमीटर बताना है।
क्लियर। तो सपोज बेटा दिस इज सन एंड दिस इज द डायमीटर ऑफ द सन, दैट इज ए बी। दिस इज मून एंड दिस इज द डायमीटर ऑफ द मून, दैट इज सी डी, एंड दिस इज अवर अर्थ। चलो ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द मून इज बी डी। ठीक है, बी डी क्या है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है, और एम ई क्या है, अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, सो हमें पता है मून और अर्थ के बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा, 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। ये हमारी किस क्या है, एम ई हमारे पास क्या है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, ये डिटरमाइन करी जा चुकी है बेटा। ठीक है, हमारे साइंटिस्ट ने इसको मेजर किया हुआ है, स्टैंडर्ड है। ठीक है, और जो ये आपकी डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ से सन की डिस्टेंस क्या है। ठीक है, सो इसको हम क्या करेंगे, देखो बेटा ये सन और ये अर्थ। ठीक है, एम ई मीन्स एम से मून, ई से अर्थ। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा, एस ई सन और अर्थ की डिस्टेंस। इसको हम क्या करेंगे बेटा, ये भी स्टैंडर्ड है, वी ऑल्सो नो 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये आपको डायरेक्ट आंकड़े याद होने चाहिए बेटा, कि ये हमारे मून के बीच में और अर्थ के बीच की डिस्टेंस है, और ये सन और अर्थ के अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस मेजर करी हुई लाइट ईयर की हेल्प से। ठीक है, अब डायमीटर ऑफ सन क्या है, देखो आपको यहाँ पे अलग से भी दिखाई दे रहा है। सन का डायमीटर क्या है बेटा, ए बी। सन का डायमीटर क्या है, ए बी। डायमीटर ऑफ सन का डायमीटर क्या है, ए बी। ठीक है, ये दे रखा है हमें। क्लियर, ओ तो आप जो इसका डायमीटर है वो कितना है, अप्रोक्सीमेट जो मेजर करा हुआ है वो हमने मेजर कर रखा है, क्योंकि हमने क्वेश्चन जो हमारे पहले वाले क्वेश्चन से बेटा 4 और 5 उनकी हेल्प से हम ये कर रहे हैं। वो इन्फॉर्मेशन जो हमने कलेक्ट कर रही है, इन्फॉर्मेशन जो मैं डायरेक्ट यूज़ कर रही हूँ, नए क्वेश्चन 4.4 और 5 ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। आपने वहाँ से इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, और हम इस इन्फॉर्मेशन को डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं दोबारा क्वेश्चन 4 और 5 यहाँ पर नहीं कराऊँगी बेटा। क्लियर, चलो तो डायमीटर ऑफ द सन वी ऑल्सो मेजर, दैट इज 1.39 इंटू 10⁻9 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास 3 इन्फॉर्मेशन आ चुकी हैं बेटा। तो अब जो सिचुएशन है वो आपको यहाँ से अलग से दिखाई दे रही है। क्लियर, तो अब कह रहा है कि अब यहाँ पे आप देखो बेटा ध्यान से, जो आपने यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो ध्यान से, जब आपकी ये सेंटर लाइन है, ठीक है, तो अगर जब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो देखो बेटा ये अपना ए बी ई, ये हमारी अर्थ है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, तो एक ट्रायंगल बन गई ना। ठीक है, इसको दोबारा बना देती हूँ मैं, देखो ये हमारा सन, मून और ये अर्थ। ठीक है, ठीक है, ये हमारा डायमीटर ए बी, और ये मून का डायमीटर दैट इज सी डी। तो यहाँ पे देखो बेटा 2 ट्रायंगल बन रही है हमारी। एक तो हमारी ट्रायंगल बन रही है ए बी ई, और एक हमारी ट्रायंगल बन रही है सी डी ई। तो दोनों ट्रायंगल क्या है हमारी, यहाँ पे सोलर इक्लिप्स में 2 ट्रायंगल बन रही है। तो दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। ये दोनों ट्रायंगल क्या है बेटा, सिमिलर है ना। तो इनका कंसेप्ट यूज़ करते हैं हम। यहाँ से क्या कह सकते हैं, जो 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं बेटा, मैथ्स में रूल होता है ए बी अपॉन सी डी, तो उनका जो साइड्स का रेशियो होता है वो भी इक्वल होता है। तो ए बी अपॉन सी डी इज इक्वल टू एस ई अपॉन एम ई। ये सिमिलर ट्रायंगल्स का रूल होता है बेटा। तो ए बी अपॉन सी डी इज इक्वल टू एस ई अपॉन एम ई। क्लियर, तो अब हमें इनकी वैल्यूज़ पता है। तो यहाँ से हमें निकालना क्या है बेसिकली, क्योंकि हमें डायमीटर ऑफ तो मून निकालना है, मून का डायमीटर निकालना है। तो सी डी अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका ए बी इंटू एम ई अपॉन एस। इन सब की वैल्यू हमने निकाली हुई है, तो इनकी वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं। 1.39 10⁻9 इंटू 3.84 इंटू 10⁸ अपॉन में 1.496 इंटू 10⁻11। ठीक है बेटा, तो 1.39, 3.84, 1.496 इंटू में। तो देखो बेटा यहाँ पे कितना था, 10⁻9, 8 और 9 17, तो 17 - 11। ठीक है, कितना हो जाएगा,
इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3.5679 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, अगर इसको हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो किलोमीटर में चेंज करेंगे तो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3567.9 किलोमीटर, ये किलोमीटर में आ जाएगा। तो सीधा डायमीटर ऑफ द मून। ठीक है, नाउ दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन बेटा 2.33। ये क्या कहता है, ग्रेट फिजिसिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी PM डिराक लव प्लेइंग विद न्यूमेरिकल्स वैल्यू ऑफ फंडामेंटल कांस्टेंट ऑफ नेचर। जो हमारे फंडामेंटल कांस्टेंट है उनकी वैल्यूज के साथ उसको खेलना काफ़ी पसंद था। दिस लैड हिम टू इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, के भी यहाँ पे काफ़ी ऑब्जर्वेशन करी। डिराक फाउंड, उसने क्या फाइंड आउट किया बेटा कि जो एटॉमिक फिजिक्स है, C मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड मास ऑफ द प्रोटॉन एंड द ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, उसने काफ़ी सारे कॉन्स्टेंट फैक्टर्स फाइंड आउट करे। ही कुड ड्राइव एट ए नंबर विद द मिशन ऑफ टाइम, ठीक है, और फर्दर इट वाज ए वेरी लार्ज नंबर, इट्स मैग्नीट्यूड बीइंग क्लोज टू इट्स प्रेजेंट एस्टिमेट ऑन द एज ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, 15 बिलियन ईयर्स। तो ये कह रहा है कि इस टेबल को आप यूज़ करते हुए जो हमारे फंडामेंटल कॉन्स्टेंट है जो हमारे बुक्स में दिए होते हैं, यू कैन कंस्ट्रक्ट दिस नंबर, ठीक है, इफ़ एनी इंटरेस्टिंग नंबर यू कैन थिंक। क्या तुम अपने अकॉर्डिंग कोई ऐसा नंबर कंस्ट्रक्ट कर सकते हो इनके बारे में देखते हुए, टेबल्स को फॉलो करते हुए। इफ़ इट्स कोइंसिडेंस विद द एज ऑफ द यूनिवर्स वेरी सिग्निफिकेंट, हो सकता है कि ये हमारे उसके लिए यूनिवर्स के लिए काफ़ी अच्छा पॉइंट हो जाए। तो उसमें आपकी खुद की थ्योरी चलेगी। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग क्या सोचते हो, आप अपने अकॉर्डिंग को ऑब्जर्वेशन कर सकते हो।